Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today we will discuss about the covalent compounds. So we need to know that what are covalent compounds. So the compounds which have covalent bonds are called as the covalent compounds. The compounds which have covalent bonds are called as the covalent compounds, like bonds present in the hydrogen atom, in methane, bond present in the carbon dioxide, in sulfuric acid, in glucose, all are covalent bonds. So these compounds are called as the covalent compounds. And जो compounds हैं जिनके अंदर covalent bonds होते हैं उन्हें covalent कंपाउंड्स का नाम देते हैं. आप कौन कौन से हैं, लाइक आप मीथेन में देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड में देख लो, सल्फ्यूरिक एसिड में देख लो, तो इनमें कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और कोवलेंट बॉन्ड्स होने की वजह से इन्हें कोवलेंट कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है. एंड देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स आर प्रेजेंट हेयर. लाइक कोवलेंट कंपाउंड्स यूजुअली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड they are usually insoluble in water but soluble in known aqueous solvent like benzene, ether, alcohol and acetone. Large molecules with three-dimensional bonding form covalent crystals which are very stable and hard. They have very high melting and boiling points. अगर आप covalent compounds की properties को देखें तो इनके जो melting और boiling point हैं वो low होते हैं. इनमें जो है ये bad conductors होते हैं electricity के और ये insoluble होते हैं वाटर में, लेकिन नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, उसमें ये डिज़ोल्व हो जाते हैं. और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थ्री डायमेंशनल बॉन्डिंग के साथ कोवलेंट क्रिस्टल्स बनाते हैं और वो बहुत स्टेबल और हार्ड होते हैं और उनके फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं. Next, polar and non-polar compounds. So if we talking about the polarity, so the fluorine atom is the most electronegative atom in the periodic table. So there are differentiation between polar and non-polar compounds. Polar compounds dissolve in water and conduct electricity, while non-polar compounds do not dissolve in water and conduct electricity. ओके, दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स. अगर आप पोलैरिटी की बात करो तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ चलते हैं और अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन एटम जो है वो पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. अब पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? पोलर कंपाउंड वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. नॉन पोलर कंपाउंड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. एंड नेक्स्ट वन इज़ गिवन एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स. दोज कंपाउंड विच हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स. एंड द metals are the basic elements which have the ability to lose their electrons are called as the metals. And there are different properties of metals like metals show metallic luster, they have brightness, and they are usually malleable and ductile. And what is malleability and ductility? Malleability is the property by which a metal can be rolled into sheets, while that ductility is the property by which a metal can be drawn into the wires. And usually metals have high melting and boiling points and low ionization energies as well as metals are the good conductors of heat and electricity. So अगर आप coordinate covalent compounds की बात करो तो ऐसे compounds जिनमें coordinate bonds होते हैं उन्हें coordinate covalent compounds का नाम दिया जाता है. अब मेटल्स आपके पास क्या होती हैं? मेटल्स आपके पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं. ठीक है, मेटल जो हैं वो मेटालिक लस्टर शो करती हैं यानी चमक होती है उनमें. ठीक है, इसके अलावा मेलेबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं. मेलेबल क्या होता है कि आप मेटल से शीट्स बना सकते हो. डक्टिलिटी क्या होता है? मेटल से वायर बना सकते हो. मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं और इसके अलावा इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं वो लो होती हैं. ठीक है, इसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट की अच्छी कंडक्टर्स होती हैं. नाउ नोट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ गिवन. Write any two properties of covalent compounds. So these are covalent compounds and these are the properties of covalent compounds. So you can write any two out of them.
So question number 2, differentiate between polar and non-polar compounds. So answer of this question start from here and ends at reaction with water. Question number 3 is given, write properties of metals. These are the properties of metal. Okay. They show metallic luster and end at that they are good conductors of heat and electricity in solid and liquid state due to mobile electrons. अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कोवलेंट कंपाउंड्स की कोई सी दो खसूसियात लिखें। तो ये आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स की खसूसियात हैं, इनमें से कोई सी 2 आप लिख सकते हैं जो आपको ईजी लगे। क्वेश्चन नंबर 2 है पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स में फ़र्क करें। तो ये आपके पास डिफरेंस है पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स का। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है मेटल्स की खसूसियात लिखें। तो ये आपके पास मेटल्स की खसूसियात हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है।